زمین کانپی نہ آسمان گرا. سیالکوٹ میں وحشی درندوں نے دن دہاڑے ایک انسان کا لاتیں گھوسے ڈنڈے مار کر خون کر دیا. سپورٹس گارمنٹ فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کر دیا. پریانتھا کمارا جان بچانے کے لیے بالائی منزل پر بھاگا. فیکٹری ورکرز نے پیچھا کیا اور چھت پر گھیر لیا, مار مار کر ادموا کر دیا. انسانیت سوز خونی کھیل کو فیکٹری گارڈ روکنے میں ناکام رہے. فیکٹری ورکرز مینیجر کو مارتے ہوئے نیچے لائے, مار مار کر جان سے ہی مار دیا. اسی پر بس نہ کیا, لاش کو گھسیٹ کر فیکٹری سے باہر چوک پر لے آئے, ڈنڈے ماری, لاتے مارے, پھر آگ لگا دی. سیالکوٹ پولیس اہلکار پہلے تو پہنچے ہی دیر سے, پھر مشتعل ہجوم دیکھ کر مزید پولیس اہلکار بلوائے, پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. پریانتھا کمارا قتل ہو چکا تھا, لاش جلائی جا چکی تھی. خاموش تماشائی بنے رہنے کا جواز پولیس نے یہ گھڑا کہ ہجوم بے قابو تھا, لوگ بہت تھے اور مشتعل تھے. ریسکیو 1122 والے بھی کچھ نہ کر سکے. کہا ہم وردی میں تھے, ممکن ہی نہ تھا کہ مشتعل لوگوں میں گھس کر پٹنے والے شخص کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت کر سکتے. جب پولیس کچھ نہ کر سکی تو یہ کیا کرتے؟ فیکٹری مینیجر کے قتل اور اس کی لاش نظر آتش کرتے ہوئے ہجوم میں شامل افراد کی جانب سے بے حسی کا افسوسناک شرمناک مظاہرہ. ہجوم میں سے کسی نے مشتعل افراد کو روکنے کی کوشش نہیں کی. کچھ لوگ تشدد کی ویڈیو بناتے اور سیلفیاں لیتے رہے. کچھ افراد لاش پر بھی ڈنڈے برساتے رہے. باقی ہجوم خاموش تماشائی بنا رہا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کو زندہ جلایا جانا پاکستان کے لیے شرمناک دن ہے. وہ خود تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ذمہ داران کو کڑی سزائیں دی جائیں گی. گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن پریانتھا کمارا کا بہیمانہ قتل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے. ایسے ماورائے عدالت اقدام قطعا ناقابل قبول ہیں. اس گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو کیفیت کردار تک پہنچانے کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے. سیالکوٹ واقعے میں ملوث 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. CCTV ویڈیو کی مدد سے دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا جائے گا. اگر پولیس کی غفلت یا کوتاہی سامنے آئی تو فوری کارروائی ہوگی. حکومت پنجاب نے 48 گھنٹے میں انکوائری رپورٹ طلب کر لی. ترجمان حسان خاون نے کہا کہ 15 پر کال اور پولیس رسپانس میں 20 منٹ کا فرق ہے. دیکھنا ہوگا اس وقت پولیس پارٹی کہاں تھی. کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے. طاہر اشرفی نے کہا کہ زیادتی, ظلم اور بربریت ہوئی. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ان افراد نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا. بطور مسلمان اس واقعے پر شرمندہ ہیں. سیالکوٹ واقعے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اظہار تشویش. واقعے کی فوری, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ. کہا واقعے کے ذمہ داروں کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. بدسلوکی اور جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے ماحول کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے. TLP کی سیالکوٹ واقعے کی مذمت. ترجمان نے کہا کہ سیالکوٹ واقعے کو تحریک لبیک پاکستان سے منسوب کرنا افسوسناک ہے. واقعے کا پس منظر اور سازش سمیت تمام پہلو مد نظر رکھ کر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں. ملوث کرداروں کو گرفتار کر کے سامنے لایا جائے. ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہ ہوگی. ملک کسی خون خرابے اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا. نون لیگ کے رہنما پرویز رشید نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر سری لنکا سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے میں ناکام ہوئے ہیں. پرویز رشید نے سماجی ویب سائٹ پر لکھا, سری لنکا ہم آپ کے مجرم ہیں. پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا سیالکوٹ واقعہ اور اس کے تمام کردار تماشائیوں سمیت انسانیت کے نام پر دھبا ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا سیالکوٹ کا واقعہ انتہائی قابل مذمت اور اسلام و شرف انسانیت کی توہین ہے. مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے.
कोर्ट ऑर्डर तो 2 दिन बाद आते हैं, तो 2 दिन ना है तो हम इधर ही रहेंगे। इधर कोई बिस्तर होगा तो ले मस्जिद में सर इतनी ताखीर से बाहर आने की वजह क्या है? हम इंतजार कर रहे थे ऑर्डर। आप गिरफ्तारी देंगे? आप हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। जी बिल्कुल, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 2 माह से आगा सिराज दुरानी को तलाश करती नैब की टीम उनके सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में सिराज दुरानी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने पहले नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। 4 घंटे तक सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में रुके रहे, फिर बाहर जाकर गेट पर मुंतजिर नैब टीम को गिरफ्तारी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आमदन से जायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसी रोज नैब टीम गिरफ्तारी के लिए कराची में उनके घर पहुंची और 15 घंटे बाहर बैठे रहने के बाद खाली हाथ वापस लौट गई थी। उस दिन के बाद से सिराज दुरानी आज मंजर आम पर आए। सिराज दुरानी पर 1 अरब रुपए से जायद की गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। सावन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो। आप पैसे जमा कर करके बस जेब तुम भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, आपने घबराना नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने बचाना नहीं, आपने घबराना नहीं। न सड़कों पर निकले, न नारे लगाए, न हड़ताल पर गए। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुलाजिमीन का अनोखा एहतजाज। तंजिया गाना आपने घबराना नहीं शेयर कर दिया। गाने के साथ जारी पैगाम में कहा कि महंगाई तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। वज़ीर आज़म से सवाल किया, आप तवक्को करते हैं तनख्वाह के बगैर कब तक चुप करके काम करते रहेंगे? 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। फीस अदा न करने की वजह से हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। क्या ये है नया पाकिस्तान? मामले पर सिफारतखाने की वजाहत भी सामने आ गई। इस्लामाबाद से मामूल के मुताबिक फंड मिल रहे हैं, अमले को मामूल के मुताबिक तनख्वाहें दी जा रही हैं। मुलाजमीन के बच्चों की फीसें अदा न होने से मुतालिक अफवाहें मनगढ़ंत हैं। कराची से ट्विटर अकाउंट हैक करके झूठ फैलाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद का कहना है कि दफ्तर खारिजा का अकाउंट हैक होने की तहकीकात कर रहे हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी फंड्स की किल्लत का शिकार। फंड्स न होने पर स्कूल फीस अदा नहीं की। मुलाजमीन के मसाइल बढ़ गए। 1 करोड़ 6 लाख रुपए जल्द अज जल्द मुहैया किए जाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका के हेड ऑफ चांसलरी का वजारत खारिजा को खत। मुरासले में कहा गया है कि स्कूल फीस जमा न कराना मिशन अफसरान और मुलाजमीन के लिए मसाइल पैदा करेगा। जियो न्यूज के राबता करने पर ढाका में पाकिस्तान के सफीर इमरान सिद्दीकी ने मुरासले की तस्दीक कर दी। ये अल्फाज तो हम हर वक्त यूज करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का, पूरा है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है। हिंदुस्तान को भी है, हमें भी है, अमेरिका को भी है, बरतानिया को भी है, सबको है। तो हम भी इसमें से निकलेंगे। हमारा ये है कि जरा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। 2-4 महीने का मुश्किल वक्त है, ये ठीक हो जाएगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की अवाम को तसल्ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आम आदमी प्रेशर में है, अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आलमी सतह पर बढ़ रही है। डोमेस्टिक महंगाई पिछले साल से कम है। जो चीजें महंगी हुई वो दरामदी अशिया हैं। मईशत और मुआशी हालत दुरुस्त सम्त में है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस वक्त रेवेन्यू 36% ज्यादा है। रेवेन्यू में इजाफे का मतलब है कि मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के 2 ग्रुपों में तसादुम में एक दूसरे पर पथराव, लातों घोंसों का इस्तेमाल। एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस का घेराव किया, दफ्तर के शीशे तोड़े, सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई की।
मार धाड़ में 3 तलबा शदीद जख्मी। तसादुम इस्लामी जमीयत तलबा और सराइकी पंजाबी काउंसिल के दरमियान हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार ने नोटिस ले लिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दर्सगाह का माहौल खराब करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और हंगामा आराई कतई बर्दाश्त नहीं। इसमें मेरे साहब को सजा देनी है। हमने आज सब कुछ लाना है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। True and genuine paper. It was a statement made on oath to me, effectively an affidavit. The person that made it produced their passport and national ID card. It was independently made. And if you have to appear before any court of law or at any legal forum to confirm that this is the document that Rana Shamim signed here, will you confirm that? Yes, I would indeed, yes. राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक करने वाले लंदन के उच्च कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गुथरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं। राना शमीम ने मुकम्मल होशो हवास में और बगैर किसी दबाव के बयान हलफी पर दस्तखत किए। जेएनयू से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पूरा अंदाजा था कि राना शमीम अपने हलफनामे में क्या कसम उठा रहे हैं। राना शमीम ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाया और आजादाना तौर पर हलफनामा बनाया। हलफनामे में यह दावा किया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज पर दबाव डाला था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हलफनामे की कॉपी सर्बमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हलफनामा वजारत खारिजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को हलफनामा पेश करने का हुक्म दे रखा है। मौलाना फजरमान और मरियम सफ्तर ने जो बातें की उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हारता वो है जो हार मानता है। आओ देखो, कानून और आईन जबरदस्त थे कि तुम्हारी जात। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बाद आजम स्वाति ने भी मुआफी मांग ली। तहरीरी मुआफी नामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, उनकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। कहा हमेशा इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया, इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई ऐसा बयान आया तो उस पर माजरत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा सियासी बातें सियासत की हद तक रहनी चाहिए। आजम स्वाति को हाजिर होना चाहिए था। आजम स्वाति अगली पेशी पर ज़ाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के मुआफी नामे पर फैसला महफूज। पीडीएम की तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का इलेक्शन कमीशन को वज़रा की माफी कबूल न करने का मशवरा। कहा आज माफी कबूल कर ली गई तो आइंदा फिर ये लोग आईनी इदारे सरबराह और मुअज़्ज़ज़ अरकान के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। पहले धमकी, फिर गाली और फिर माफी वज़रा का वतीरा रहा है। तहरीक इंसाफ इदारों की तौहीन को एहसास समझती है। आइन और कानून पर किसी किस्म की मसलहत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3 लड़कियों समेत 10 अफराद अगवा कर लिए गए। अगवा किए गए अफराद में 12 साल का लड़का, 11 साल की बच्ची भी शामिल। सांदा की रिहायशी 11 साल अलीना स्कूल जाने के लिए घर के बाहर खड़ी थी, अगवा कर ली गई। पुलिस ने तमाम वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए। अगवा होने वाले अफराद का ताल्लुक ग्रीन टाउन, सांदा, इकबाल टाउन, गुज्जरपुरा, मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल, चोंग, रायवेंड और फैक्ट्री एरिया से है। सांदा से 2 अफराद अगवा हुए। कोट अद्दू में पुलिस अफसर की लड़की से मुबैना ज्यादती का केस एक के बाद एक रुख बदलने लगा। पहले लड़की ने इल्जाम लगाया, फिर शनाख्त से मुकर गई, फिर एएसआई और मुतासरा लड़की में 50 लाख रुपए की मुबैना डील सामने आ गई। खातून ने मुकदमा वापस ले लिया, पुलिस अफसर रिहा हो गया।
पुलिस को मामू किस ने बनाया, पुलिस हुकाम हरकत में आ गए। पुलिस की मुद्दयत में नया मुकदमा दर्ज हुआ। मुबैना मुतासरा खातून के खिलाफ मुलजिम से 50 लाख रुपए बटोरने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज करके खातून और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक मुतासरा खातून अदालत में समाअत से पहले मुलजिम से 35 लाख रुपए नक्द और 15 लाख रुपए का चेक वसूल कर चुकी थी। पुलिस ने मुतासरा खातून से 2.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। गिरफ्तार अफराद अदालत में पेश, अदालत ने शवाहिद नाकाफी करार देते हुए पैसे वसूल करने का मुकदमा खारिज कर दिया। खातून को भी रिहा कर दिया। औरत जायदाद नहीं, एक बावकार और आज़ाद इंसान है। तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। निकाह के लिए बालिग़ खातून से रजामंदी लाजमी करार। खातून पर बिना रजामंदी शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। खातून को अमन के लिए या दुश्मनी खत्म करने के लिए नहीं दिया जा सकता। किसी बेवा का कोई भी अजीज उसकी जबरदस्ती दूसरी शादी नहीं करवा सकता। बेवा को उसके शौहर, बच्चों और वालिद की जायदाद में से शरई हक मिलेगा। बेवा को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार होगा। एक से ज्यादा शादियां करने वाले बराबरी की बुनियाद पर बीवियों के हुकूक का ख्याल रखेंगे। डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में $1 73 पैसे महंगा, $1 177 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 50 पैसे का हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में बेलारूस के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी बुनियादों पर किए जाने वाले इक़दाम पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा, हम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। अगर बिलावल भुट्टो सरदारी धमकी दे तो किसी को डर लगता है क्या? PDM वालों कोई धमकी वाला तो तगड़ा ले आओ। विफाकी वजीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। PDM पर भी तंज, कहा तारीखें देते रहे और PDM ही खत्म हो गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाय पी, बिस्किट खाए लेकिन तहरीक शुरू न की। PDM मौलाना फजल रहमान को इस्लामाबाद भेजकर खुद गायब हो गई थी। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। आज वसी तर मुफाहिमत और कौमी यकजहती की जरूरत है। एहसन इकबाल बोले, मुल्की खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। बड़े शहरों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम नून लीग की तरजीह है। इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह। गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन के लगाए जाएंगे। NCOC ने अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना से सेहतियाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाने की हिदायत। सिंध भर में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नजर बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन के डोज के 6 माह मुकम्मल होना लाजमी करार दे दिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 391 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। वजीर सेहत से नजरा पेशहू का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया उनके घरों तक जाएंगे। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज हर सूरत लगाना जरूरी है। ओमिक्रॉन वायरस के सिलसिले में तशवीश है कि बूस्टर वैक्सीन वायरस की इस किस्म के लिए मौसर होगी या नहीं। कोरोना की इस किस्म में 50 से ज्यादा जीनियाती तब्दीलियां मौजूद हैं, जिसके बायस ये वायरस तेजी से मुंतकिल होता है। सर्दी बढ़ने के साथ लाहौर में गैस बहरान। शालीमार, घोड़ेशाह, हरबंसपुरा और अंदरून शहर से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। जहानिया, लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस की किल्लत से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। सुई गैस हुकाम का कहना है कि चंद इलाकों में इंफरादी फॉल्ट से गैस प्रेशर कम है। सखर, हैदराबाद, परीदन में भी गैस की घंटों गैर एलानी लोड शेडिंग। बन्नू और पेशावर में भी गैस न होने से खाना बनाना मुश्किल हो गया।